ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ناظرین، آج کی نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہے کچھ ملا کی نئی ویڈیو لے کر۔ پہلے آپ کچھ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد ہم اس میں کچھ وضاحت کریں گے۔ جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب سے مستگاری حاصل کرنے کا بدلہ دیں، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ ہر چند چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ صوفی صاحب، میں لوگوں کو کیا بتاؤں، میں نے جو آپ کے پاس آیا تھا پہلے بھی آپ نے صرف ہاتھ پھیرا تھا شرٹ کے اوپر اور سب کیا کیا چیزیں نکل کے ساری سامنے آ گئی۔ میں چاہتا ہوں میں لوگوں کو دکھاؤں بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ کے پاس یہ کرامات ہیں اور آپ لوگوں کو شفا، ان کی بیماریاں ختم کروا دیتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو ہم کچھ دکھا سکتے ہیں؟ یہ آئے میں اچھا یہ دیکھیں، ارے یہ نکل ہے، یہ ایسا عمل ہوا ویسے۔ یہ دیکھیں، یہ جادو جس پہ بھی ہو جائے، کافی لوگوں کے اس طرح نکلے۔ میرے کو لکھا ہے اس کا ستارہ بند ہو جائے، بیمار اور برباد ہو، ہر طرح کی بندش ہو، جدائی اور نفرت ہو۔ یہ تو آنکھوں کے سامنے نکلا ہے کپڑے کے اندر سے۔ اس کے نام تک مجھے نہیں پتا۔ ہاں اچھا، یہ ٹانگوں میں درد رکھا، اور یہ دیکھیں شرٹ کے اوپر سے خود ہی گرا ہے، مطلب نظر ہی نہیں آیا کہاں۔ اہم ترین چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا یہی ہمارے شاعر تھے؟ نعتیہ محفل، ختم قادریہ، 11ویں شریف، 12ویں شریف، کیا یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعر کی حیثیت سے متعارف تھیں؟ نہیں، وہاں مسلمان کی پہچان تھی قرآن، حدیث، مسائل، جہاد، خدمت دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے آپ کی اطاعت کرنا۔ اور آج مسلمان نے ان شاعر کو ترک کر کے ان شاعر کو اختیار کر لیا جس میں کھانے پینے کا موقع مل جائے۔ اب قائے علماء بھی قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہوئے ڈرنے لگا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ سنیں گے نہیں۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر کوئی پہلے نام بے وضو لے لیا کرتا تھا مر جاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا عبد القادر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر وہ بے وضو نام لیتا تو ایک بال ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ ہماری عوام کو یہ تماشے چاہیے، عمل کا نہ کہو، اطاعت رسول کا نہ کہو، حرام کے چھوڑنے کا نہ کہو، ہمیں یہ قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، چستیاں پلاؤ۔ قادیانی نو رو رہے ہو کہ انہیں ذلی نبی کیا ہے؟ وہ تواڑے بازی نے ڈٹ کہا کہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں۔ دسو قادیانی دا پیو کیڑا ہویا پھر؟ بازید بستامی؟ اور اگر اس نے نہیں کہا تو بری ہے، لیکن تم تو پرنٹ کر رہے ہو نا۔ آج کوئی وابی بھی نکلا ہے، کوئی دیوبندی نکلا ہے، کوئی بریلوی نکلا ہے کہ ان کتابوں کے اوپر بندی لگاؤ۔ لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہے، شبیر برادر پرنٹ کر رہا ہے، بریلویوں کا سب سے بڑا مکتب، PDF رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو کچھ قبروں مزاروں پہ ہو رہا ہے یہ اسلام ہے؟ یہ میرے نبی نے تعلیم دی تھی، یہ سکھایا تھا میرے نبی نے صحابہ کو، وہ پختہ قبریں بناؤ۔ اب تو مبلغ اسلام نے بھی اپنے بیٹے کی قبر پختہ بنا لی ہے۔ ہماری اور آپ کی کامیابی اللہ کے نبی کے رستوں میں ہے۔ میرے نبی نے تو پختہ قبر بنانے سے منع کیا تھا، منع کیا تھا پختہ قبر بنانے سے، قبر کو چونا گج نہیں کرنا۔ میرے نبی نے قبروں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ قبروں پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ قبروں کے اوپر بیٹھنا؟ کون اوپر بیٹھتا ہے؟ قبر کے اوپر چڑھ کے کون بیٹھتا ہے؟ یہ کرسیاں ڈال کے قبروں کے گردا گرد بیٹھنا میرے نبی نے اس سے منع کیا۔ جاؤ حدیث کی کتابیں پڑھو، جاؤ مشکات اٹھاؤ، مسند احمد اٹھاؤ۔ لعنت اللہ علی زائرات القبور والمتخذین علی المساجد والسرج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبروں پہ جانے والی عورتوں پہ رب کی لعنت، قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت، والسرج اور قبروں پہ چراغ جلانے والوں پر رب کی لعنت۔ کس نے کہا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کس نے کہا ہے؟
मेरे आका ने कहा, लाइए किसी के पास दलील है तो, किसी ने चादर चलाई हो दलील लाइए, किसी ने फूल की पत्ती फेंकी हो दलील लाइए, किसी ने उर्स करवाया हो दलील लाइए। एक सेकंड भाईजान, किसको आप लाठी मार रहे हैं इतनी तेज से? शैतान को मार रहा हूँ। कहाँ पर है शैतान? इसके अंदर है। ये बेगरत शैतान है, सारों पे हावी हो जाता है। लानती था ये बेशुमार, इस पे इसने बहुत जुल्म किए। ये है क्या चीज? लानती। किसको पत्थर मार रही हैं आप? शैतान को। कहाँ पर है शैतान? हाँ शैतान, मौलाना शैतान। जब भी मेरा लगता है इसको हर बंदा आके जो ना इसको जो ना पत्थर मारता है। आप भी पत्थर मारना शुरू हो गए? और क्या, मैं देखो ये मैं जब भी आता हूँ इसको 1 घंटा पूरा पत्थर मारता हूँ। ये तवाफ करते हैं इन चीजों से। तवाफ कर रहे हैं? हाँ जी, ये तवाफ कर रहे हैं। फकीरी फुकरा आई है या उनका हजी है? क्या होता है 7 चक्कर लगाने से? पता नहीं, लफ्ज़ लगाते हैं तो लोग लगा रहे हैं। इस वक्त हम सेवन शरीफ में मौजूद हैं, जहां पर हज़रत कलंदर लाल शहबाज का 773वां उर्स मुबारक की तकरीबात का सिलसिला जारी है। ये सिंध का सबसे बड़ा मेला है जो कलंदर शहबाज का, जहां पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की रस्म व रिवाज कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ क्या करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बच्चे, खवातीन, मर्द सब इसको पत्थरें मार रहे हैं। कह रहे हैं कि शैतान इसमें अंदर है, वो कैद है, इसको हम पत्थरें मारते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। किसको पत्थर मार रहे हैं? ये शैतान को पत्थर मार रहे हैं जी। कहाँ पर है शैतान? ये इधर पड़ा है, ये शैतान पड़ा है। ये तो खाली पत्थर पड़े हुए हैं। बस ऐसे हमको नजर नहीं आता, ऐसे शैतान ही हम इसको जो है ना वो पत्थर मारते हैं। इसको जितने बेजायरीन लाल शफी शहबाज कलंदर के आते हैं ना, वो उधर इसको पत्थर मारते हैं। कहते हैं कि काफी अरसे 700 साढ़े 700 साल से ये आ रहा है और इसको सब जो है ना हम पत्थर मारते हैं। हज उम्रा ये बस यही समझ लें बस। नाजरीन, आपने वीडियो देखी, इन मुल्लाओं की बातें भी सुनी, आवाम की बेअक्ली भी देखी। अब हम इन तमाम चीज़ों पर कुछ रोशनी डालेंगे, सही इस्लाम की तालीम की दावत ज़रूर देंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सरकारी मुसलमानों और अहमदी हकीकी मुसलमानों के इस्लाम में हर चीज़ में अब तो वाकई इख्तलाफ बन चुका है। तुम लोग मज़ारों पर सजदे करो, पीर फ़कीर से मुरादें, औलादें, रिस्क मांगो, गौसे आज़म के बुत बनाकर पूजा पाठ, सजदे करो, खाना काबा के मॉडल बनाकर हज के मुकाबिल पर वहाँ काबा की तरह तवाफ़ करो और कहो कि यहाँ हमारा हज हो जाता है। रस्म बिदात करो, तावीज़ गंडा करो, वो अकीदे रखो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और तबा ताबईन से भी साबित ना हो, तो वाकई तुम्हारा तो सारा इस्लाम ही बिगड़ा हुआ है। इख्तलाफ तो अब सब चीज़ों में आ गया। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानो, बशर ना मानो। कोई बशर माने, नूर का इनकारी हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में नऊज़ुबिल्लाह अज़वाज का पेश किया जाना और शब्बाशी का अकीदा मानो और खुदा की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर मानो, तो इख्तलाफ तो हो गया। एक तरफ ख़त्म नबूवत ला नबी बादी का नारा मारो, फिर कहो कि दीन मुकम्मल और कुरान महफूज है, नबी नहीं आ सकता। साथ ही कहो कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम आसमान पर जिस्म समेत जिंदा बैठे हैं, 2000 साल से उन्होंने अभी आना है। कोई पूछे कि दो मुतज़ाद अकीदे कैसे रख सकते हो? तुम लोग अपने नबी को ज़मीन के नीचे मदफून मानकर एक इसराइली नबी को आसमान पर जिंदा जिस्म समेत अल्लाह के साथ बिठाने के अकीदे रखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कम करने की तौहीन और शिर्क करते हो। हम इनसे कुछ पूछें कि ये क्या कर रहे हो, तो कहते हैं गुस्ताख की सज़ा सर तन से जुदा। शिबली रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के कलमों का दिफा करते हैं, वहाँ सर तन से जुदा भूल जाते हैं। शिया 12 इमामों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल और हुक्म अदल माने तो मुसलमान के मुसलमान, नबियों से अफजल 12 इमाम हुए तो तौहीन अंबिया भी तो हो गई। ख़त्म नबूवत का 12 दफ़ा इनकार भी, इमाम क्या सुपर नबी है, सब नबियों से अफजल। 12 बार ख़त्म नबूवत का इनकार करके भी, सहाबा कराम और अम्महातुल मोमिनीन को गालियां देकर भी, अगर कौमी असम्बली के फैसले के मुताबिक ये सब मुसलमान हैं तो तुम लोगों का इस्लाम ही कोई और है। ये असम्बली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने वाली, फ़िरौनों और हज़रत ईसा इब्ने मरियम को सलीब पर सज़ा देने के फ़ैसले करने वाली असम्बली है। फिर जो सिर्फ मुत्तकीन के खिलाफ हरकत में आती है और कातिलों, फसादियों और बेईमानों की मुआवनत करती है। भाई अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, तुसी शिरक ते बदात का ना इस्लाम रख छोड़ावे। सारे फ़िरके एक दूसरे को बिदाती और ख़त्म नबूवत का मुनकिर, तौहीन अंबिया के मुजरिम कहते हो।
और काफिर खत्म नबूवत के मुनकिर होने के फतवे एक दूसरे पर दिए हुए हों, दूसरे फिरकों से शादी, ब्याह को ज़नाए खालिस और औलाद को वलद हराम कहे तो सब ठीक है। ये है अक्सरियत का हाल और इनकी कौमी असम्बली के इजमा की हकीकत। तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क हो चुका हुआ है। 150-200 साल से ही बेड़ा गर्क हो रहा है, होता ही चला जा रहा है, वो भी अपने ही मुल्ला के हाथों। हमारा इस्लाम और तुम्हारा इस्लाम वाकई मुख्तलिफ है। तुम्हारा कुरान का फ़हम और हमारा कुरान का फ़हम सब जुदा है, क्योंकि हम अहमदी मुसलमान तहरीफ मानवी और बातिल तावीलें नहीं करते, अल्लाह का खौफ रखते हैं, तकवा रखते हैं। तुम इस इस्लाम की तरफ बुलाते हो जिसकी सदाकत तुम्हारे नज़दीक अपने जाम और कम इल्मी और कम फहमी में महज सदियों पुराने और अक्सरियत का इस्लाम होने में है। ये दावा भी सिर्फ एक झूठ है। हम उस इस्लाम की तरफ बुलाते हैं जो तकरीबन 1500 साल कबल हमारे प्यारे आका और मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और उन पर नाजिल शुदा कुरान ने पेश किया। वो कुरान आज भी मौजूद जूं का तूं है, मगर समझ उसी को आ सकती है जिसके दिल में तकवा होगा। जो मुल्ला का सदियों से घड़ा हुआ इस्लाम है वो 600-700 साल पुराना है। बिगड़ा हुआ तहरीफ शुदा इस्लाम ये मुल्ला का वो इस्लाम है जो कुरान में मानवी तहरीफ करके मुल्ला की चौधराहट के खनास दुनियादारी के उसूलों पर मालो ज़र और नाजायज़ ताकत के गैर इस्लामी और गैर इंसानी इस्तेमाल और अपनी मनमानियों के वसूल और बातिल तावीलात पर ज़िद की बुनियादों पर खड़ा किया गया है। ये वाला सरकारी इस्लाम वो है जो बिदात, शिरक और बातिल अकायद पर खड़ा किया गया है, मगर उन मुल्ला से उनके अकीदे कुरान से अहमदी मुसलमानों के आगे साबित नहीं होते। तब आखिरी हरबे के तौर पर ये हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतुब की तरफ दौड़ें लगाते हैं ताकि वहाँ से चंद लाइनें कत्र बेविनत करके अपना मफ़हूम मानी खिलाफ वाक़े घड़कर झूठ को उसमें डालकर अहमदी मुसलमानों को धोखा देकर राह फरार इख्तियार कर सकें। आखिर पर ये लोग इसमें भी कामयाब नहीं हो पाते तो लचर बेहुदा झूठे इल्ज़ामात और बुहतानों पर उतर आते हैं। गालियां देकर उनको भागना पड़ता है। हम उन मुल्ला के इस फ्रॉड से आगाह हैं बड़ी अच्छी तरह, और मुल्ला जो मानी और फ़हम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की तहरीरात से निकालना चाहते हैं उसका बड़ा मुदल्लिल जवाब भी देते हैं, और उन मुल्ला के कफ़र, बिदात, बदशिरकिया अक़ाइद और तूफ़ान बदतमीज़ी और फसाद से हम अहमदी मुसलमान बरी है। हम अल्लाह से डर रखने वाले अहमदी मुसलमान हैं। अहमदी ही दरअसल हकीकी मुसलमान हैं, मुत्तकीन की अक्सरियत वाली जमात, ना कि सिर्फ तादाद वाली अक्सरियत जो कि महज 72 फ़िरक़ों पर मुश्तमिल नारी फ़िरक़ों की अक्सरियत है। ज़ालिकल किताब ला रैबा फ़ी है हुदाई लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तकीन के लिए हदायत। कुरान भी यही बता रहा है कि इस किताब से हदायत सिर्फ मुत्तकीन को मिलती है। लोग अपने कलमे पढ़ाने वाले मुल्ला को खुदा बनाकर उनकी मानकर उनकी परस्तिश करते हैं। उन यहूदी सिफत शैतान नमा मुल्ला को रब मान बैठे हैं, यानी बिला तहकीक उन मुल्ला की जाहिलाना बातें और अकायद को मनो अन मानते हैं। वो कभी भी कुरान से हिदायत नहीं पा सकते। एक बदबख्त ईसाई था, उसकी यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोरोना वबा से मर गया था ये बंदा, मगर एक बेटा बदबख्त अभी भी है तुम्हारे मल्ला के जैसा जो उसके चैनल को यूट्यूब पर चला रहा है। उन लोगों का काम ही नबियों, कुरान, सहाबा और अम्माहात के ऊपर झूठे इल्ज़ाम, बुहतान लगाना है, और कहते हैं कुरान की फला आयत में सबूत देख लो, हदीस की फला किताब में फला हदीस बतौर सबूत पढ़ लो। तो तुम जैसे मुनकिरीन अंबिया लोग तो इस्लाम के खिलाफ भी बकवास करते हैं। तुम ज़रा उनके जवाबात देने की भी जसारत कर लो। अपनी किताबें भी पढ़ो पहले कि क्या क्या गंद, तौहीन और शिरक लिखा हुआ है इन किताबों में। पीरो गौसे आज़म क्या क्या करते फिर रहे हैं। जाहिर है वो तो नेक ही बंदे थे। ये तुम्हारे मल्ला नमा यहूदियों ने ही इन किताबों में ये शिरक और गंद डाला होगा। फिर ये भी देखो कि मल्ला, पीर, वली, गौस में से कल में कौन कौन अपने पढ़वा गया है। फरिश्ते की आंख थप्पड़ मारकर कौन फोड़ देता है। किसके धोबी महज कपड़े धोने के बायस जन्नत में जा रहे हैं। लो महफूज कौन लोग जब चाहे जितनी चाहे पढ़ लेते हैं। मैं अर्श पे गया था अल्लाह को ढूंढने, तो जब मैं वहां पहुंचा, आला हजरत के लफ्ज सुनो, जब मैं वहां पहुंचा तो अर्श को भूखे भेड़िए की तरह मुंह खुला हुआ पाया। जैसे भेड़िया भूखा होता है, शिकार के लिए मुंह खुला रखता है कि कहीं से आए तो दबोच लूं। कहा अर्श को मैंने भूखे भेड़िए की तरह मुंह खुला। काफिर काफिर खातमुल नबीयीन बड़े नबी नहीं, शमसुल आंचल কোন
সে কাদিয়ানীরা কাফের। এদেরকে পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই, আগে বুঝে নাও কোন গুণে তুমি মুমিন। ছয় কথা বিশ্বাস করার গুণে যদি তুমি মুমিন হয়ে থাকো, কাদিয়ানীরা ছয় কথার 3 নম্বর না মানার কারণে কাদিয়ানী কাফের। তুমি যে গুণের কারণে মুমিন, ওই গুণের অস্বীকারী হওয়ার কারণে কাদিয়ানী কাফের। দলের নাম ছিল গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী 3 নম্বর দালাল। সে বই লিখলো গভর্নমেন্ট কি তাওয়াজ্জুহ কে লায়েক। বইয়ের মধ্যে ফতোয়াবাজি করলো ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের পক্ষে দালালি করেছিল। নারে তাকবীর, উলামা দেওবন্দ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। কাফের কাফের, খাতামুন নবীনের পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই। সবাই বসেন বসেন। इनको खुली छुट्टी है, जितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर ले। 70% पाकिस्तान की अक्सरियत है, तो इस वजह से इनको माफ़ है। ये अक्सरियत वाले लोग किसका झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा मान रहे हैं। हैरत है कि अक्सरियत अवाम ऐसे अकीदे और करतूत होने के बावजूद पक्के मुसलमान हैं। अब क्या ये कहता है कि अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह सलीब होकर गिरता है और उनके गौसुल आज़म नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को थाम कर गिरने से बचाते हैं और गौसुल आज़म दस्तगीर कहलाते हैं, यानी नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को भी थाम लेने वाला। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या क्या गंद, तौहीन, शिर्क है। ज़रा अपने गिरेबानों में झांको तो सही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर व नाजिर कौन मानता है। ये अकीदे किसके हैं कि कब्र में अज़वाज मतहरात भी शब बाशी के लिए नऊज़ुबिल्लाह पेश की जाती है। तुम लोगों को है कोई शर्म व हया, पक्के मुसलमान बने फिरते। ओ किस मुंह से तुम जमात अहमदिया मुसलमान आलमगीर पर झूठी बकवास करते हो। अपना मुंह आईने में देखो तो सही, अपने अकीदे और किताबें पढ़ो तो सही। इसीलिए तो मुल्ला तुमको मना करते हैं कि अहमदी मुसलमानों से बात करो तो मर जाना, मगर अपना फ़िरका कभी ना बताना, ताकि अहमदी मुसलमान तुम लोगों को तुम्हारी किताबों और बाबों के कारनामे ना बता सकें। इतनी शर्म आती है तुमको कि मर जाओगे मगर सीना ठोक कर अपना फ़िरका और अपने मुसलमान बाबे और मुल्ला नहीं बताओगे। चैंपियन हो तो बस झूठे इल्ज़ाम, बुहतान, बेबुनियाद बातें दावे घड़ने में और दीदा दिलेरी और ढटाई इतनी है। कहते हैं कि ये हदीस और कुरान में लिखा है, पूछो कि कहा तो आए बाए शाए, फिर उस झूठ पर जिद करके उड़ जाना, कज बहसी, गालियां और बदमाशी, मारपीट, तशद्दुद, दहशतगर्दी। ये है तुम्हारे मुल्ला का इस्लाम, तुम्हें ही मुबारक हो। अहमदी मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम और कुरान के पैरोकार है, इसी पर हमारा खात्मा होना है। इस्लाम अहमदियत यानी कि हकीकी इस्लाम जिंदाबाद। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। मजीद नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। तो रखते हैं मुसलमानों का दिल, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल।